ladies and gentlemen. Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, and a warm welcome to another session of Greener, Happier Tomorrow, episode 7, brought to you as promised every alternate Saturday by Parijay Genius. I'm your host for the evening, Seema Sharif, an emotional intelligence coach and a relationship coach, effective communications trainer, and a content writer by passion. I'm glad to have our lovely audience back with us. So today, we are going to have an exciting session with our very talented guests. Arsh, could we have the sliders, please? Yes. Let me introduce Dr. Kavita Batra, who is an assistant professor at Manohar Memorial College of Education, Fatehabad, Haryana. She also holds a PhD in educational psychology and technology. Moving on to our next guest, Ms. Prabjot Kaur, State Coordinator at Social Welfare Department, a Nodal Officer, Drug Abuse, Nari Niketan, Aftercare Home, Disability, and a one-stop center, and she's a part of the Chandigarh administration. For those of you who have joined us for the first time, a sneak peek into us, Parijay Genius is committed to the cause of a greener environment, restoring green wealth that Mother Nature has gifted to us, which mankind has been continually depleting. We need to pass on this green legacy to our generations for a better tomorrow, and it is time that we brought about a green revolution. Our motto, every corner needs a plant. So I request the audience to follow a few guidelines. Please type in your questions in the chat box after our talk. Introduce yourself by stating your name and city when you unmute yourself for your questions, and kindly keep your audio muted during the session. We would appreciate that. So now let's move on. Let's watch an interesting video that Dr. Kavita would like to share of her garden with us. How colorful and interesting. Yes, that was really beautiful. And I think, the excitement of the raindrops and that feel, that the kind of whiff of that soil that you get when it rains fresh. Exactly. The video kind of brought back all that to our mind. That was wonderful. Awesome, awesome, awesome. Well-maintained garden you have, Dr. Kavita. Thank you so much. Right. So how did our audience like it? I mean, are you all interested, excited to move on to the next part of our session? Please type in an excited in the chat box. I'd request my audience to type in excited in the chat box, or at least unmute yourself and say that you're excited. Yes. Right. So, can we move on to our next exciting session for today? I have my questions to both Prabjot ji and to Kavita ji. How did your love towards plants begin and grow to this extent? Either one of you could take a step forward. Okay, I can start. Good. Hello, everyone. Hello, Seema ji. How are you? Hello. Doing well. As far as my journey is concerned, I am not inspired by my ancestors, or I have not got this into the legacy. Actually, what happened
was we used to live in our ancestors' place, which was not very big. And as it was very old, then we decided to construct a new house. For that sake, we have to move to the new rental accommodation. Once we, it is a quite big 4 room with 4 room BHK, 4 BHK, the house it is, and it is quite spacious. So Right. as my house is under construction, so I really did not want to spend money on the any kind of furniture or any new things and all. I really did not want to spend, because my aim was to buy it afterwards as per the scheme and as per the theme and as per the space. So for that sake, when we moved here, we have lots of space, just because we had a small house and we did not had that much furniture and all. So I decided to go with the plants. Then Right. slowly, gradually, I get to know that how plants are adding colors into it, how plants are helping me to grow, how plants are helping my children to grow more. So slowly, gradually, in these 2 years only, I have learned this much. So I would love whatever I have learned to share with others also. Now that's those are beautiful pictures that you've shared with us of your home. Thank Exactly. you. That's so beautiful. Yeah, and well maintained. A lovely collection you have. Exactly. Thank you. Right. What about you, Dr. Kavita? How did your journey begin? I have a big story of my journey. Right. Can I present my PPT? Yeah, That's sure. about my Please. journey. That's all about my journey. I All covered my right. journey in a presentation. Right. I think Okay. your story is about your broken crockery and the plants you brought from your college. Exactly. You're And very right I'd like here. my audience to know, she's इतना प्यारा शीर्षक दिया है आपने कि टूटे हुए प्याले से खिलते बगीचे तक का सफर. Exactly. बिल्कुल आपने सही तो कहा. I think हम लोगों को सबको सुनना चाहिए कि इनका सफर कितना रोमांचक रहा है. बिल्कुल. We all can relate to this. क्या मैं Yes, अपनी please. screen share Yes, करूं? yes, please go ahead. Okay. Okay, just a minute. I'm sharing my screen. Absolutely. Okay. Is it visible? Not as yet. Yes, now it's visible. Visible. Okay. Just a minute. So, ये सफर शुरू हुआ एक टूटे हुए प्याले से. जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2 टूटे हुए कप. एक्चुअली ये मेरे फेवरेट मग्स थे और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं इन्हें थ्रो आउट करूं, फेंक दूं. तो एक कॉलेज जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस कप में मैं इसको ग्रो कर सकती हूँ. तो सफर यहाँ इस मग से शुरू हुआ और जर्नी आप पहुंची इन कलरफुल पॉट्स जी, पर. तो जी. ये Dr. presentation- Kavita, just 1 second. You could play it on a slideshow, so that would make it a full screen. just On the top, trying. yeah. Yes, now it's okay. Right, yeah, absolutely. Okay, okay. तो ये सफर शुरू हुआ टूटे हुए प्याले से खिलते बगीचे तक. जी. सबसे पहले ये देखिए, जितनी मेरे घर में टूटी हुई क्रोकरी थी, कोई मैगी का कप और कोई Beautiful. टूटा हुआ बॉल और कोई प्लास्टिक जी. की बॉटल्स. जी. फिर धीरे धीरे ये शौक बढ़ता चला गया. जब ये सुंदर लगने लगे, फिर एप्रिशिएट करने लगे सब इसे, तो जी. ये चलता चला गया. फिर ये टूटा हुआ दरवाजा, ये एक छत पे कभी बहुत पुराना एक दरवाजा टूटा हुआ था. तो बॉटल्स भी Brilliant. बहुत हमारे यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स और ऑयल कैन्स और पता नहीं क्या क्या ना. ये जी. विनाइल की बॉटल्स, इन्हें कट करके इस पे लगाया. और ये पिक्चर मेरी फेवरेट है जो ये आप इसमें देख रहे हैं. जी. इसमें देखिए नीचे छोटा सा प्लांट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ये छोटे से पिक्चर बहुत कुछ सिखाती है कि हार सही. नहीं मानो, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो जाती है, जिंदगी खत्म माशाल्लाह. नहीं होती. तो Very ये nice. बहुत, ये इसी तरीके से टूटी हुई चीजों से और वेस्ट मटेरियल से शुरू हुआ था ये सफर मेरा. फिर मैंने इस बहुत अच्छा. दरवाजे को थोड़ा सा और कलरफुल किया, थोड़ा पेंट कर दिया. एक दिन बच्चे आए और बच्चे बहुत शरारतें कर रहे थे, मोबाइल्स जी. नहीं छोड़ रहे थे. तो जी. मैंने इनको पेंट लाके दिया और बोला कि इस दरवाजे को पेंट करो. उन्होंने मोबाइल छोड़ा Wow. और मेरे इस दरवाजे को पेंट कर दिया. Very तो nice. उस दिन पूरा दिन उन्होंने मोबाइल नहीं उठाया और वो इसमें बिजी रहे. और देखो कितना अच्छा उन्होंने इसको पेंट कर दिया. ये बिल्कुल. मैंने उनसे खूब बॉटल्स पेंट कराई. ये देखिए, ये बॉटल Yes, on the right. पेंट कराई. जी. हाँ, ये कुछ इस तरीके से पेंट कराए.
फिर चलता गया, फिर वेस्ट मटेरियल, और ये मेरा एक टब टूट गया था। इसकी तो एक बहुत अच्छी कहानी है। इस टब के अंदर इतना बड़ा होल था नीचे से, ये कुछ उठाते टाइम नीचे से टूट गया। अब इतने बड़े होल के साथ आप इसमें कुछ ग्रो नहीं कर सकते। अब समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे यूज किया जाए। तो हम गर्मियों में मटका लेके आते हैं सब, जी मटके के ऊपर का जो ढक्कन होता है वो मैंने इसके अंदर वो उल्टा रखा और फिर मिट्टी डाली, और फिर इसमें खूब सारे प्लांट, ये फ्लावर्स बहुत मिले मुझे इसमें। वेरी ये नाइस। सब वेस्ट मटेरियल, ये देखिए ये वेस्ट, थोड़ा थोड़ा पेंट कर दिया है। ज्यादा पेंटिंग मुझे नहीं आती है, लेकिन थोड़ा नहीं, थोड़ा that's यूट्यूब okay. काफी हेल्प करती है हमारी इस तरीके की जी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में। बिल्कुल। तो ये ऑयल कैन था हमारा, ऑयल कैन को एक शेप देने की कोशिश की है। तो ये Wow. सब वेस्ट मटेरियल चलता गया। किसी को पता भी नहीं चलता कि दैट्स एन ऑयल कैन, जब तक हाँ, कि ये आपने वो नहीं बोला। हाँ सफोला कैन, वो सफोला कैन था ये हमारा। जी जी। तो So फिर I ये think we need to endorse and get some publicity also, money from them then. Saffola can, right? yes, absolutely. फिर दो चार गमले लाने, फिर घर में सबको शौक हुआ, ये मेरे हस्बैंड इन्होंने दो चार गमले लाके दिए, फिर शुरू किया जी छोटा और थोड़ा, फिर ये बढ़ते चले गए। ये माशाल्लाह। बटरफ्लाई कितनी प्यारी, फिर बटरफ्लाईज आनी शुरू हो गई, फिर सबको और अच्छा हाँ जी लगने लगा कि हाँ बटरफ्लाईज भी आ रही हैं इस पे। बिल्कुल। फिर ये थोड़ा सा नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हुआ, पेंट कर दिया गया इनको। फिर थोड़े और बढ़ गए, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए इनके अंदर। जी फिर देखिए ये थोड़ा और नंबर बढ़ता जा रहा है इनका, ऐसे ऐसे जर्नी चलती जा रही है। वेरी फिर नाइस। ये आए बोट शेप आए पॉट्स मेरे पास, मैंने वेजिटेबल्स ग्रो की, मेथी पालक सीजनल जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो ग्रो करनी शुरू की। ये जी सब सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ये कितना क्यूट लग रहा है, ये तो बहुत क्यूट लगता है अभी भी। तोरी बैंगन, जिस दिन जी सब्जी नहीं हो ना फ्रेश सब्जी हम्म, तोड़ के बनाओ, ऑर्गेनिक वेजिटेबल आपके हाथ की ग्रो हुई, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। स्ट्रॉबेरीज, पिछली पिछली विंटर्स में हमने बहुत स्ट्रॉबेरीज खाई पॉट्स में से लगा के। देन ये वाओ। धीरे 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 ये बढ़ते चले गए। ये फिर देखो बर्ड्स आने शुरू हुए, बटरफ्लाईज आ रही थी, अब यहाँ बर्ड्स भी आने शुरू हो गए। वेरी नाइस। फिर हम खूब एंजॉय करते, ये मेरा रेनी सीजन खूब। फिर ये कभी भी टूटा हुआ मटका या जो सीजन के बाद हम मटका रख देते हैं उसको हमेशा एक जी प्लांटर की तरह यूज किया। जी फिर गिफ्टिंग, कोई आए तो वो बिना प्लांट लिए मेरे घर से कभी नहीं जाएगा। तो ये गिफ्ट शुरू हुए, स्प्रेडिंग लव, है ना, हैप्पीनेस। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जहाँ कोई भी अगर हमारा गेस्ट आ रहा है तो हम वहां पे भी ये प्रैक्टिस शुरू की हुई है कि हम प्लांट ही गिफ्ट करते हैं। ये कैक्टस पे फ्लावर, आई लव दिस फ्लावर, ये कैक्टस है और कैक्टस के ऊपर देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। ये कसोली गई थी और कसोली से जस्ट कहीं रास्ते में से मैंने एक टहनी तोड़ ली थी और ये बहुत प्यारा ग्रो कर रहा है अभी। वाओ। ये मेरी फ्रेंड, शी इज एंजॉयिंग माई गार्डन। ये देखिए जी नाउ ये अभी इसका लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट लुक है गार्डन का वो ये है, वो बहुत पुराना लुक था। बहुत खूब बहुत खूब। ये कुछ थोड़ा सा क्रिएटिविटी, कहीं लकड़ी पड़ी थी और मैं उठा के ले आई उसको। जी ये पालक है और ये बटरफ्लाईज आ रही है। और मेरा भी कोई स्टूडेंट पुराना मिलने आता है तो वो मुझे गिफ्ट करता है, ये मुझे गिफ्ट किया हुआ प्लांट है, मेरे स्टूडेंट्स ने दिया था मुझे, बहुत प्यारा माशाल्लाह, प्लांट है इससे ये। अच्छा और क्या हो सकता है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स का प्यार है ये। जी। ये सब फ्लावर्स, अब वो जानते हैं कि आपका बिल्कुल इन पौधों के प्रति कितना प्यार है, तो बिल्कुल वो तभी तो आपको जानते, ये गिफ्ट भी करते हैं। छोटा सा मैंने एक क्रिएट किया था मिनी गार्डन, ये मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा बहुत था। अच्छा है। ये पिछले लॉकडाउन में मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ रुकी हुई थी, उसका बेटा बहुत छोटा था और वो तंग कर रहा था, तो हमने अपने हम्म। सारे पुराने टॉयज निकाल के, लाइक ये देखिए छोटे छोटे एनिमल्स निकाले हमने, जी जी और जी। हमने ये एक फेरी गार्डन बनाया था तब। I think I'd like to tell my audience that you can learn so many beautiful things and so many artistic ideas from what Dr. Kavita is showing us, and we all can inculcate this in our homes. हम लोग अपने बच्चों को भी ना इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को तो बिजी रखने का बहुत अच्छा बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलकर भी उनको भी ना ये they can be awakened with their love for plants बिल्कुल बिल्कुल and bring about their creativity and improve their imagination also. एग्जैक्टली। Right, please फिर continue. फोटोग्राफी का शौक तो अचानक ही जाग जाता है ना जब आपके पास प्लांट्स होते हैं तो। जी ये अभी लुक है, आजकल इनकी ड्यूटी है, सनसेट है पीछे और ये
पानी दे रहे हैं प्लांट्स को। Wonderful. ये मेरा हार्वेस्ट देखिए, मेरे Mhm. गार्डन का हार्वेस्ट है ये वेजिटेबल्स। वो खुशी अलग ही होती है. बिल्कुल, और ये एक सेंटर में बनाया है। Very nice. ये पाइप है और किचन वेस्ट बोल था, Mhm. जिसको मैंने एज अ मशरूम, ये भी बॉटल है, बॉटल के ऊपर किचन वेस्ट वो बोल था छोटा सा प्लास्टिक वाला, जी. दिवाली पे हम चेंज कर देते तो मैंने उसकी मशरूम्स बना दिए। Very nice. ये थोड़ा So दिवाली brilliant पे takeaways for our audience, how they can improve their gardens with creative ये ideas. एक छोटा से कॉर्नर में हमने बुद्धा सजाए हैं। जी. ये वेस्ट मटेरियल जितना भी कप है वो है, ये छोटे छोटे बूल्स नीचे, ये सब वेस्ट है जी. कट करके जिनको, ये मशरूम वाला जो मशरूम का पैकिंग आता है हमारा, हाँ. उसको मैंने कट कर दिया था। जी. So I love my garden very much. This is all about my garden, journey of my garden. Beautiful. Beautiful. Thank you so much. That was an amazing journey, Dr. Kavita, that you shared with us. And I think आज रात को काफी लोग सो नहीं पाएंगे कि उनके अंदर वो नए नए आइडियाज उमड़ रहे होंगे कि कब दे कैन ऑल्सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट, एंड कब ये बनाएंगे और अपने किचन का बर्ड्स खोलेंगे कि क्या क्या टूटा फूटा या पुराना है जिसको वो कन्वर्ट करें और अपने बगीचे को भी सजाएं, मैं अपने घर अपने को नेबर्स सजाएं. को बोलती हूँ कि गली में फेंकने की बजाय ना किचन वेस्ट मेरी छत पे फेंक दिया करो। बिल्कुल. Wonderful. That was nice. Right. Prabjot ji, how did plant parenting help you during this pandemic? Like as in keeping your mental health and the fitness in mind. Very interesting question. There is a story behind it. Actually, during this lockdown, मेरी कोई छुट्टी नहीं थी. Instead, कर्फ्यू थी, हमें ऑफिस जाना पड़ता था. तो पूरा पेंडेमिक में I used to go every single day to office. तो उस दौरान मेरी जो है हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी और it was very tiring time. हम सभी को पता है कि lots of deaths, lots of cries, so many devastated situations we have been through. तो बहुत बार ऐसे होता था कि मैं अपने आप से एक जूझ रही थी कि जो भी आसपास हो रहा है उसे स्वॉलो करना और फिर उसे घर लेकर जाना है बहुत डिफिकल्ट था. तो कई बार ऐसे होता था कि मैं गाड़ी में ही बैठ के, जब ऑफिस से निकलती थी गाड़ी में ही बैठ के, आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट. फिर दिल हल्का करके फिर फेस पे स्माइल लेकर आई यूज्ड टू एंटर इन माय हाउस, बिकॉज़ all except me, all are sitting in the home. They are waiting for me सिर्फ एक होप के साथ, और मेरे बच्चे तो मुझे एक होप के साथ देख रहे हैं. So I really did not bring that negativity at home. तो जब भी ये चीजें, ऐसा टाइम था कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी. मैं हस्बैंड से शेयर कर सकती थी, बच्चों से नहीं कर सकती थी, इन लॉ से नहीं कर, और टाइम ऐसा था किसी को कॉल करके भी नहीं पूछ बता सकते थे. तो दिस मैंने अपना जो मन बदला या मैंने अपना माइंड डाइवर्ट किया वो अपने गार्डन से किया. आई स्टार्ट लर्निंग और टॉकिंग टू माय प्लांट्स. जितना ज्यादा हम अपने प्लांट से बातें करते हैं, दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड अस एंड वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड देम कि किसको कितना चाहिए, किसको कितना क्या प्रॉब्लम है, उनको अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए क्या चाहिए, क्या न्यूट्रिशन चाहिए, व्हाटएवर. when I started talking to them, तब जो मेंटल लेवल थोड़ा सही होने लगा. और फिर बहुत कुछ उनसे भी सीखा मैंने. उनसे मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लांट्स ने मुझे क्या सिखाया. ऑर्किड्स है मेरे घर पे. तो ऑर्किड एक ऐसा प्लांट है जो मिट्टी में नहीं होता. वो जो कोकोनट की झाल होती है उसके बीच में होता. तो उससे मैंने सीखा कि हमें ये प्लांट्स बताते हैं कि इसके लिए हमें सभी की सिचुएशन के मुताबिक नहीं जीना. अगर हर मिट्टी में रह रहा है तो ये नहीं है कि मुझे ब्लूम भी मिट्टी में ही होना है. तो मैं बिना मिट्टी के भी या बिना किसी और सिचुएशन में भी मैं ब्लूम कर सकती हूँ. जैसे कि एग्लोनिमा है, तो मेरा बेटा है बहुत देर बाद हुआ था, 9 साल के बाद हुआ. और मेरी बेटी जो 12 साल की हुई तब मेरा बेटा हुआ. तो फिर उसके बाद आई हैव गॉट सो मेनी पिगमेंटेशन ऑन माय फेस. देन आई सॉ एग्लोनिमास. एग्लोनिमास में बहुत सारे जो उनका फोलिएज है वो बहुत ही स्पॉटेड होता है.
Then I've learned that Aglaonema is telling me that instead of those dark spots, light spots, you can still bloom and you can still look beautiful. You can still grow whatever it is. Wow. Then we have vines at our home, जो trailing vines होती है. हमारे पास string जी. of bananas है, pothos है, then turtle vine है. तो ये क्या सिखाते हैं? They all come downwards towards जी. the ground, towards the earth. What it जी. tells, instead we are growing downwards, then also we have to grow. अगर हम downfall की तरफ जा रहे हैं, then also we have to bloom, we have to grow. Right. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो I have learned from my garden, and I have went through that pandemic. Wow, that was brilliant. I think it's a wonderful takeaway that, whichever ground you're in, I mean, you don't have to worry about who is in which ground. Make your own ground, grow, bloom beautifully, and stand firm on your own ground. Exactly. And I think the other takeaway that you gave was, आप जिस भी direction में आप जाओ, you have to grow, you have to glow, and you have to become beautiful. Exactly. Superb. I mean, that was a brilliant lesson that you learned from the plants. I mean, thank you for sharing that with us, Prabjot ji. My next question would be to both of you for your views. हर किसी का अपना एक perception होता है regarding a lot of things. Since we're talking about plants, how do you perceive the importance of plants in your life? It's an open question to both, so anyone can go ahead. Plants Yes. are, I think, best friend. उनसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता है ना. और जी. ऐसा नहीं कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते. आप फील करके देखिए, अगर आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप सुबह जब उठते हैं उनके पास जाते हैं, आप एक बार प्यार से गुड मॉर्निंग बोलिए, और जब वो लहलहाते हैं तो वो फील आती है कि दे वांट टू हग यू, या वो आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आपका पूरा दिन इतना ब्यूटीफुल जाता है. तो प्लांट्स आर, आई थिंक, रियल फ्रेंड्स ऑफ माइन. Super. Prabjot ji? I feel the same. They actually whenever we talk to them, they do respond. वो हमें सिखाते हैं, हम उनसे सीखते हैं. It is a ongoing process. It is a two-way. अभी एक दिन के लिए कहीं चले जाओ तो कैसे उदास हो जाते हैं आपके बिना. जी. I think वो सिर्फ अगर घर में एक भी पौधा हो तो वो माहौल ही बदल जाता है उसका. You start feeling them like a member of your family, Exactly. Something. Right. So it's glad to know that आपका perception भी it's quite similar. And I love both your gardens and the DIYs that you people have inculcated into that. Super. Thank you. Right. Dr. Kavita. Yes. You also have a concept of best out of waste. Yes. उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे आप? Absolutely. ये आप जो भी पिक्चर्स स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें बहुत सारी वेस्ट चीजें आप देख रहे हैं, लाइक ये मटके, और अभी आपने जो हैंगिंग्स में देखे वो किचन वेस्ट बोतल थी, और ये पीवीसी पाइप्स और प्लस बॉटल्स का पार्ट है आगे, और पीछे का पार्ट जो है ये जिसमें फ्लावर्स हैं, ये किचन वेस्ट. एक मेरे पास डिब्बा था और ये क्रैक हो गया, नीचे मेरे हाथ से गिरा और ये क्रैक आ गया इसके अंदर. तो लगा कि इसका क्या किया जाए, तो क्रैक को थोड़ा बड़ा कर दिया जी, और इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा प्यार डाला, और देखो कितने अच्छे फ्लावर्स ये दे रहा है हमें. बिल्कुल. तो सिमिलरली ये जो पीवीसी पाइप थी, ये भी वेस्ट पीवीसी पाइप है. जी. और कुछ हमारी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स इधर उधर रहती हैं जी. तो बस थोड़ा सा उनको मोमबत्ती ली और थोड़ा सा मोमबत्ती से उनको सॉफ्ट किया और इसके अंदर उसको फिट कर दिया. Absolutely. और हैंग कर दिया, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है. जब इनमें फ्लावर्स आते हैं सीजन में तो ये बहुत सुंदर लगती है. बेशक. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का अच्छा है कि हम प्लांट्स एनवायरनमेंट को वैसे ही अच्छा करें, लेकिन अगर हम प्लास्टिक जो है, जो लाइक ये देखिए आशीर्वाद आटा की थैली, तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये आटा की थैली आटा यूज करने के बाद वेस्ट है.
या फिर ये जी जो आप देख रहे हैं सफोला, ये मग, इजी की बॉटल जो इजी हम जी यूज करते हैं, जी। ये बॉर्नविटा का एक डिब्बा हम्म। है ना, ये भी प्लास्टिक बॉटल है, ये भी किसी प्रोडक्ट है, ये टूटा हुआ कप है। तो ये जितने भी वेस्ट है, अगर मैं इस प्लास्टिक को फेंक देती तो ये सब एनवायरनमेंट को बहुत खराब करते। और अब ये जी डबल प्रोटेक्शन है, प्लांट तो है ही है, ऑक्सीजन तो दे रहा है, जी और प्लास्टिक भी हम एनवायरनमेंट में नहीं दे रहे, तो हम डबल प्रोटेक्ट कर रहे हैं आई थिंक अपने एनवायरनमेंट को। जी ये भी एक मेरी वाटर बॉटल थी, टूट गई थी, तो इस वाटर बॉटल में मैंने लकी प्लांट, ये मेरा स्टार्टिंग में लकी प्लांट, जेड प्लांट यही था, इसी से शुरू हुआ था मेरा गार्डन का सफर, तो ये जी वाकई मेरे लिए लकी रहा। उसके बाद मैंने इसे इतना प्रोपेगेट किया, इतना प्रोपेगेट किया, मुझे याद भी नहीं है मैंने इसे कितने लोगों को गिफ्ट किया होगा। जी जी जी। सुपर, वेरी नाइस। Prabjot ji, what's your perception regarding your plants? What I perceive is like जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, हमारा दायरा बहुत कम होने लग जाता है, हमारा फ्रेंड सर्कल कम होता है, और Right. बहुत कम लोग होते हैं जिनसे हम सब कुछ शेयर कर पाते हैं। और कई बार ऐसे देखा है हमने अपने एक्सपीरियंसेस में कि जैसे हम अगर किसी से शेयर करते हैं तो या तो उसका उसे परसीव गलत कर लिया जाता है, या उसका छोटी सी बात का बहुत बड़ा बन जाता है। सो व्हाट Right. आई कि प्लांट्स आर योर ऑलवेज ऑन गोइंग बेस्ट फ्रेंड्स, जो ना आपको कभी धोखा देंगे अगर हम प्यार से रखते हैं, ना आपको कभी उनकी तरफ से नेगेटिव फीलिंग आएगी। This is the thing which I have learned. The more you give, the more you get. The more love you give, the more response you get. So I always perceive, and I always tell my children also to be busy with these plants. Keep them whenever they require. Keep taking them whenever there is we keep on changing the planters from inside to outside and outside to inside. 15 दिन बाद we keep on changing. तो मुझे लगता है it actually helped me in making myself busy, कि जिस दौर से हम गुजरते हैं, मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ स्केड्यूल है वो बहुत ज्यादा बिजी कह लीजिए या डिप्रेसिंग कह लीजिए, क्योंकि नारी निकेतन है, वहां पर भी हमें कोई केसेस नहीं आते। वन स्टॉप सेंटर है जहाँ पे फीमेल्स आती हैं जो कि अपने घरों से परेशान होती है, वो भी कहीं बहुत अच्छा माहौल। ड्रग अब्यूज में देखते हैं बच्चे, जवान बच्चे ड्रग्स, वो भी कहीं बहुत अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इट एक्चुअली हम वो चीजें घर ले आते हैं और keep on pondering on that. So I really did not want to do harm to my mental level. So this is the best ever substitute for my health. And second are my जो बहुत ही करीबी friends हैं या हैं, those are the bestest savior of my life actually. Super. I think what a beautiful thought that you shared with us. You know, the plants are the most unconditional love ko jo, you know, who represent unconditional love, where, you know, the more you give, the more you get. And they don't react the way, you know, we human beings do to each other. So I think you show love to plant and they show love to you, but they don't show any kind of negativity that you said. So I think that was a beautiful thought that you shared with us. Yeah. They accept you as you are actually. Exactly. They don't judge, don't they are yours and you have to be them. और plant एक ऐसी चीज है जो जैसे कि this is my rental accommodation और we were allowed to put a nail on any wall, तो plant helped to add color in that. Wow. तो हर wall के साथ एक plant है, हर corner में एक plant है, then it be inside, then it be outside, तो हर जगह plant है. I would be having approximately 60 to 70 planters inside my home, and then I have 3 balconies. So इसलिए they are my saviors actually. Super. I mean, your perception of plants is like so beautifully woven with all your thoughts and feelings attached to that, if I can say. That was really wonderful. Do you have any kind of, since I saw your home and the pictures and they're beautifully done inside, the interiors, would you like to share your plant styling tips, you know, preferably, you know, so that it can suit everybody? So when you can go on a low budget, and if you have any plant styling tips that you could share with our audience. Exactly. There are a lot more people and my friends and my families, they do ask me about कि plants तो इतने महंगे होते हैं, and you are saying
के आप फर्नीचर नहीं लोगे तो इट्स बेटर कि प्लांट पे दे कीप ऑन डाइंग एंड दे कीप ऑन, so why are you wasting your money on these? So I Yeah. always say, instead, why don't you do smart work in that? So I have divided the categories of the plants and I'll share it with you. प्लांट स्टाइलिंग उसके बाद में आएगा, मतलब हमारे पास एक होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल प्लांट्स होते हैं जी. जैसे कि अरेका पाम, फिडल फिग, देन वी हैव ड्रेसिना, देन वी हैव जो लॉन्गिट्यूडनल हमारे जी जी जी. तो एक तो वो कैटेगरी है. देन वी हैव स्प्रेड होते हैं जैसे कि एग्लो हमारे लिली है, जो जनाज है जो कि बाहर की तरफ फैलते हैं. देन लास्ट वी हैव द सक्लेंट्स जिनका साइज स्मॉल होता है और दे रिक्वायर वेरी लेस, कह लीजिए, also please bear me with my son actually. No, please, absolutely fine. तो तीसरा होता है कैटेगरी जो कि हमारी सक्लेंट्स की होती है. सो बाय styling, always keep in mind that we will go with the odds. Either 3 की pairing करेंगे या 5 की pairing. Okay. 3 की pairing करेंगे. We have to keep it in a mind that one, they should not be on same level. Number 1, they should never be on same level. Second, जब हम उन्हें प्लेस कर रहे हैं, सबसे पहले एक लॉन्गिट्यूडनल वाला आएगा जैसे कि अरेका पाम रखा. देन वी विल प्लेस वन मिडल जो कि हमारे साइड्स की तरफ फैल रहा है जैसे कि जेनाडू है या फिर एग्लोनिमास आगे, क्रोटॉन्स है जो कि कलर ऐड करते हैं. देन द थर्ड इज द सक्लेंट्स में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है. द वेरी टाइनी इफ यू आर कीपिंग इट ऑन द टेबल, देन a bigger one if you are keeping it on the floors. And you the thing is the level should not be same. अब उस लेवल को बड़ा छोटा करने के लिए either you can keep books, you can stack the boxes जो हमें कई बार शादियों में मिठाई के डब्बे आते हैं. I keep on them because वो आजकल बहुत ज्यादा लुक उनकी अच्छी आती है. So I stack it, keep a plate and then keep a planter on that and make a group of either 3 and 5. अगर 3 के साथ जाती हूँ, I always go with the 3 of plants. If I go with the 5, then I add elements in that. Show piece जो है लगा दिया, similar color. So this is the thing which I go with. और अगर हमारे उसके अगर तो हमारे पास planters हैं, we are expending our money on that, then it is good. If not, then हमारे table mats आते हैं. I just staple them and make a round loop and I just उसे planter के आसपास I just got it और वो boho look दे देते हैं. So wonderful idea. I think today's audience is really going to enjoy doing up their interiors in their balconies from both of you. Thank you. Those such wonderful things for them to note and take home. And मेरे लिए तो definitely, so I can tell you that बहुत ideas मिली तो I'm सच में I don't know how to say, वो जैसे हिंदी में बोलते हैं ना दिल बहुत प्रफुल्लित हुआ, so something like that I can tell you. बाग ही हो गया. Right, बिल्कुल हाँ बाग हो गया बस. The right word to say. So, Dr. Kavita, like, do you have any plants that you would like to recommend? Like anything, like आजकल तो there are so many myths and beliefs even around plants. हम लोग इंडिया में we don't even leave the plants aside also when it comes to our myths and beliefs and like what is best to keep and what is lucky and not lucky and things like that. So would you like to share your thoughts on that? Yes, there's one major myth that is cactus घर में रखना अच्छा नहीं होता क्योंकि उसपे कांटे हैं. गुलाब रखना अच्छा है, कैक्टस रखना अच्छा नहीं है. कांटे तो गुलाब पे भी है. गुलाब आपको हर घर में मिलेगा लेकिन कैक्टस बहुत कम जगह मिलेगा. What a point. Right. तो वही चीज है. बट पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस जो कैक्टस को लेके है वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. अप एंड डाउन हर एक की फैमिली में है, अप एंड डाउन हर एक की लाइफ में है. तो एक बार ऐसा कुछ टाइम आया, कुछ हार्ड टाइम था, तो मैंने कहीं जस्ट एक लाइन पढ़ी कि कैक्टस एब्जॉर्ब्स द नेगेटिव एनर्जी.
मुझे लगा ट्राई करना चाहिए इसको। आप बिना ट्राई किए किसी को सलाह नहीं दे सकते, पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा। जी। तो आई ट्राइड कि कैक्टस से क्या ये सब कुछ होता है, ऑलरेडी इतना नेगेटिव है, इससे नेगेटिव क्या होगा, है ना। वो कुछ टाइम ऐसा हमारी लाइफ में आ जाता है। सही। तो तब कुछ कैक्टस मैंने लगाया। अभी मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में कैक्टस का फ्लावर भी दिखाया था, और वो फ्लावर तब था जब नेगेटिविटी को उसने अब्सॉर्ब करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया। वो एकदम से ब्लूम किया, उस पर फ्लावर आया। इट वाज अनबिलीवेबल कि सिचुएशन जैसे ही चेंज हुई, नेगेटिव से पॉजिटिव हुई, तो वो अपने आप से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई कैक्टस में, जो कि बहुत Was it the same cactus that you showed us, that you shared? एग्जैक्टली वो उसी टाइम की बात है, वो बहुत पुरानी जी। बात है, लगभग 4-5 साल पुरानी बात है वो। जी। तो तब से मैंने कैक्टस इतना लगाया मेरे घर में, हर तीसरा जो वैरायटी है वो कैक्टस की है प्लांट्स के अंदर। और कैक्टस उसके बाद परमात्मा की कृपा रही कि ऐसा कभी नेगेटिव टाइम नहीं आया और नहीं आएगा। माशाल्लाह। तो जी। उसके बाद वो सच में, तो ये मिथ जो लोगों के मन में, एक्चुअली हम कैक्टस हमें सिखाता है ना कि आप अपने आप को चेंज करो। उसने अडेप्ट किया, सब चीजों को गॉड ने क्रिएट किया। अगर रोज बनाया है या फिर पोर्चुलाका बनाया है, लेंटाना है जिसपे ब्यूटीफुल फ्लावर्स आ रहे हैं, तो कैक्टस ने क्या कसूर किया। अगर वो डेजर्ट में है तो उसे जीने के लिए अपना तो अडेप्ट तो करना होगा ना। तो वो एक अडेप्टेशन है, उसकी लीव्स की मॉडिफिकेशन है जो कि थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गई है। तो हमें वो, जैसे कि अभी प्रभजोत मैम ने कहा कि प्लांट्स बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत हमें, सिर्फ हम उनसे सीखें कि हम क्या कर सकते हैं ना। तो सिमिलरली जो, तो ये मिथ मैं स्पेशली लोगों का दूर करना चाहती हूँ कि जो कैक्टस के बारे में आपके पास मिथ है कि कैक्टस को घर में नहीं लगाना चाहिए, तो कैक्टस मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि जो मैंने लाइन में ही पढ़ी थी कि कैक्टस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो इट्स वेरी मच ट्रू। जी। So nice. That is so nice. I think along with discussing plants, हम लोग we are discussing even philosophy that our plants are teaching us every day. So I think most of the plant lovers are also inclined spiritually, is something that I can say. It's beautiful. It's beautiful. Prabjot ji, as you mentioned about your children and आप अपनी job के साथ, you've been so busy and mentally stressed during the COVID, and and to strike a balance between home and your work, right? So इसमें being a mother, and especially after a long gap, how difficult was it for you to manage these large number of plants, one? And also, do you involve your children, or do your children also help in managing and taking care of the plants? This question is very close to my heart or my life, क्योंकि there are two questions you have asked. एक तो है कि how do I manage? See, management, अगर successful होना, management करना पड़ेगा. People do ask me, how do I survive with these I have so many charges जो मेरे professional life में है, जो professionalism में है. How do I manage? See, there are excuses in our life कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मेरे पास ये भी है, वो भी है, या बच्चे हैं प्लांट तोड़ देते हैं. It is our responsibility to teach them. कोई भी सीख कर नहीं आता, ये पंखा है, ये लाइट है, ये कुछ भी हम बताते हैं, या हम भी कुछ सीख कर नहीं आए थे, हमें भी बताया था. So I always tell my children that, see, this is the plant, it has a life, you have to respect them. Absolutely. One, alike, ये तो एक प्लांट है. इसी तरह हमारे साथी लोग हैं जो कि इंसान है या जानवर है, they are again alive, we have to respect them. Secondly, I tell them कि ये जो plants हैं, एक इनकी जड़ें हैं, roots हैं, जो उनको बांध के रखती हैं. So इसी तरह हमारे भी कुछ principles हैं, roots हैं, जिससे हमें जुड़कर रहना है. No matter what the way we are going towards Westernism, no matter what the way we are adopting other cultures, it is fine. We are open to that. But in our families, in our culture, in our lives, we must have some principles जो आपके individual भी हो सकते हैं और आपकी family oriented भी हो सकते हैं. And we must stick to them. We have to be with the roots actually. So this actually I keep on telling them. And my daughter, she's 13 years old, and she actually helps me in maintaining the plants. If I get late for the work, I tell her to water the plants. She waters.
या फिर जब हम बहुत अंदर अपने प्लांट्स कर रहे होते हैं तो माय सन जितने लाइक होता है वो छोटे सक्लेंट्स के प्लांटर्स जो बहुत लाइट वेट होते हैं और छोटे होते हैं, सो ही कीप्स हेल्पिंग मी, मम्मा मैं ये लेकर जाऊंगा, मम्मा मैं वो लेकर जाऊंगा. सो माय बोथ चिल्ड्रन दे हेल्प मी अ लॉट. हाँ, इनिशियली ऐसा नहीं है कि कभी मेरे पौधे टूटे नहीं या मरे नहीं, इट हैपेंड, बट अगेन आई kept telling them that these are the plants and we cannot let them die and we cannot mishandle them, we cannot let them throw here and there, so we have to respect them. So they follow it very nicely and I'm glad with them and I'm very thankful beautiful. for them. Beautiful, beautiful. I mean, I think I must appreciate the way you have taught your children the principles of life and how to maintain relationships as well, and even taught them how to love the plants, take care of them, just like how we're supposed to nurture, our own relationships. The same nurturing you've taught them towards the plants. I think that's a Exactly. wonderful principle that you have let them adopt in their lives. That was very nice, very interesting. Thank In you. fact, yeah. ऐसा एक्सपीरियंस Dr. Kavita, मेरे साथ, हाँ, yes. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा रहा. Hmm. एक्चुअली अप्रैल में मुझे कोरोना हो गया था. Okay. और मुझे ही प्लांट्स का शौक था, मैं ही पानी देना, मतलब मुझे ही सब कुछ करना. बाकी सबको अच्छा लगता था लेकिन वो केयर नहीं करते थे उसकी. जी. लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, ये नहीं कर पा रही है और ये सूख रहे हैं, तब मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं, वो उन्हें सूखता हुआ नहीं देख सकते, वो उन्हें मुरझाया हुआ नहीं देख सकते. और उन्होंने उसको फिर केयर करना शुरू किया और सब कुछ. अब उनको इतना प्यार हो गया, उनसे इतना प्यार हो गया. अगर मैं अभी लेट भी आ रही हूँ मेरी ड्यूटी से, मुझे पता है कि मेरे प्लांट सेफ है, सेफ हैंड्स में है. Oh, nice. तो एक आपका बहुत भला हो गया कोविड में, बोलो. बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा हो गया. जी. बहुत फायदा हुआ इस चीज का मुझे. बिल्कुल, वेरी नाइस. डॉक्टर कविता, जैसे आपने आपकी बालकनी एंड योर टेरेस गार्डन जो भी आपने शेयर किया, and you said that you don't have proximity to have something as in a land because you live at a height. How did you start about your kitchen garden जो आपने grow करना कैसे start किया, because you can't keep lot of heavy pots in the house हाँ, ये so limited space में how did you start maintaining your kitchen garden? This is very right question. जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे फ्लावर्स के साथ साथ कुछ अपना वेजिटेबल्स भी ग्रो करना चाहिए, तो किचन गार्डन का थोड़ा शौक था. लेकिन फिर वही बात की, जब मैंने वो आपको बोट शेप अपने पोट्स दिखाए तो वो तो बहुत हैवी थे. आप 2, 4, 5 तो मेंटेन कर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते हो, आप एक टेरेस पे रह रहे हो. तो उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं ग्रो बैग्स यूज करूं, और ग्रो बैग्स इज सच अ वंडरफुल आइडिया. मेरे अभी भी जितनी भी वेजिटेबल्स ग्रो कर रही हैं, लाइक लेमन ट्री, हम प्लांट नहीं कहेंगे, वो एक ट्री की शेप उसने ले ली है. तो वो ट्री ग्रो बैग में इतना अच्छा और इतने बढ़िया लेमन मुझे दे रहा है वो, और इतनी अच्छी फ्रूटिंग उसके अंदर हो रही है. लाइक व्हाइट ब्रिंजल जो कॉमनली नहीं देखने को मिलता, व्हाइट ब्रिंजल इतना बढ़िया अभी भी वो लगा हुआ है मेरे गार्डन में, किचन गार्डन में, वो सब. और लौकी है, तोरी है, या फिर आजकल ककड़ी का सीजन है. ककड़ी तो बच्चे आते जाते तोड़ते हैं, मम्मा बहुत मीठी है, मम्मा ये बहुत मीठी है, तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि हाँ, बच्चे उसको वहीं से तोड़ रहे हैं वॉश करके और वहीं से खा रहे हैं. तो ये चीजें, टमाटोज है, चिलीज है, रेड चिली, ग्रीन चिली, जैसे कैप्सिकम है, ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स. ये सब चीजें ग्रो बैग में, जिससे कि हमारी जो टेरेस है उस पे ज्यादा वेट भी नहीं है. और ग्रो बैग्स का जो ड्यूरेशन या वो जो वो 3 साल तक आराम से चल जाता है, खराब नहीं हो रहा है. तो काफी अच्छा उसकी ड्यूरेबिलिटी, दैट इज ड्यूरेबल. और उससे टेरेस को कोई नुकसान भी नहीं इस तरीके का हो रहा है. वो कुछ लिमिट नहीं करता आपके प्लांट ग्रोथ को? डज इट लिमिट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उसका ग्रो बैग का पर्पस ही यही है. ग्रो बैग्स में आप इजीली, ग्रो बैग्स डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं जी. अगर आपको कोई छोटा प्लांट लगाना है या जिसकी रूट्स डीप नहीं है, तो उसके लिए आप छोटा साइज का ग्रो बैग यूज कर सकते हो. अगर आपको लाइक लेमन है या और अदर वेजिटेबल्स हैं जिनकी रूट्स आपको ज्यादा जा रही हैं. इस बार हमने ग्रेप्स बहुत खाए, ब्लैक ग्रेप्स मैंने ग्रो बैग में ग्रो किए, जिसकी की वाइन जब बहुत ऊपर चली गई. और इतने मैंने पिक्चर भी शेयर नहीं की, मैं फिर ग्रुप में शेयर करूंगी बाद में जी. तो इतने बढ़िया, हाँ, इतने बढ़िया ग्रेप्स थे. इवन इस बार तो क्या किया, इस बार एक बहुत अच्छी चीज हुई कि
आलू कई बार पड़ा पड़ा उस पे छोटी छोटी आंख निकल जाती है, तो एक्सपेरिमेंटल उसको करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके छोटा छोटा वो मैंने ग्रो किया। तो कैन यू बिलीव दिस कि मुझे कम से कम 12-15 आलू उसके अंदर से मिले। जी बिल्कुल और बिल्कुल। प्याज हम Right. काटते हैं तो हम घर से ही, ऐसा नहीं है हमें कोई बाहर से सीड्स लाने हैं। लाइक टमाटोज Yes. मैंने ऐसे ही ग्रो किए, चिली मैंने ऐसे ही घर में ग्रो की, और जी जो हमारा कद्दू होता है उसके बीज मैंने रख लिए। करेला, मार्केट में जाओ तो भैया ये सड़ा हुआ करेला देना, बोले मैम इसका क्या करोगे, आई सेड कि मुझे बीज चाहिए इसका, इसीलिए आप मुझे ये सड़ा हुआ करेला भी दे दो। तो जी वो आप इस तरीके से किचन गार्डनिंग अपना घर में ही कर सकते हो आप। धनिया है, हमारे घर में धनिया का बीज अवेलेबल है, बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो हमारे जी किचन में ही अवेलेबल है। एब्सोल्युटली और प्याज है, प्याज को आप थोड़ा सा कट करके और उसको लगा दीजिए तो सही बहुत है। बढ़िया वो लुक भी बहुत अच्छी देता है। और धनिया के तो फ्लावर्स बहुत प्यारे आते हैं, धनिया के फ्लावर्स की पिक्चर शेयर हाँ, करूंगी मैं। द ओ माय स्मॉल गॉड, वंस। वो बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं उसके ऊपर। और धनिया खाने में तो इस्तेमाल हो ही रहा है। तो वैसे बहुत सारे स्पाइसेस हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो इजीली आप अपने घर में और ग्रो बैग्स में ही ग्रो कर सकते हैं, जिसके लिए ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Brilliant concept, brilliant concept. I think this also can be a brilliant takeaway for our audience कि अगर आप not able to grow what you want to, आपका passion है, you have a kitchen garden, then I think you can use this concept. And आप दोनों से बात करके ना मुझे I started remembering my garden because at present I'm moved out of where we are. So maybe, I can inculcate everything once I go back, you know. That was very nice. So one last question to both of you. Is there anything or what is the best thing that has happened to you in your plant journey that you would like to share? जो आपने सीखा हो या आपके साथ हुआ हो, what is that one thing in your plant journey that you can recollect and share? पिछले लॉकडाउन में इतना ज्यादा क्रेज हुआ कि उसको थोड़ा सा और उस पर कुछ इन्वेस्ट किया गया। सबने मिलके उसमें कंट्रीब्यूट किया, पूरी फैमिली ने कंट्रीब्यूट किया कुछ कुछ करके। और उसके बाद वो उसकी लुक आपने देखा कि लुक एकदम ही चेंज हो गई। पहले जो मेरा टेरेस फ्लोर था वो एकदम से अच्छा नहीं था, बाद में हमने फ्लोर को भी तीनों ने मिलके, फैमिली मेंबर्स ने, लॉकडाउन के टाइम में सब लोग घर में थे, सबके जी हाथ में पेंट था और ब्रश था, हमने सबने पूरा फ्लोर ही पेंट कर डाला, पूरे अपने very पॉट nice. से अपने पेंट कर जी डाले। और उसके बाद जब हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या नेबर्स आए और जो एप्रिसिएशन मिली ना उसके बाद, वो माइंड ब्लोइंग एप्रिसिएशन थी। और अभी पिछले दिनों फेसबुक पे कुछ फोटोज जब शेयर की, एक हम मेरी टीचर हैं, उन्होंने 10 डेज चैलेंज शुरू किया कि सब अपने अपने गार्डन की फोटो शेयर जी करो और जी आगे जी किसी को बोलो कि सब लोग अपने गार्डन की फोटोज शेयर करें, जी जिससे कि लोगों में गार्डनिंग का शौक जागे, तो जी उनकी भी हॉबी बने गार्डनिंग ना। तो वो जब फेसबुक पे वो 10 डेज लगातार फोटोज शेयर की, उसके बाद जो एप्रिसिएशन मिली कि हमें आपका गार्डन देखने आना है, हमें आपका गार्डन देखने आना है, तो वो आपके अंदर एक डिफरेंट ही एनर्जी। आप कितना भी नेगेटिव हो, कितने भी टायर्ड हो, लेकिन जब आपको एक ऐसा कमेंट मिलता है कि कोई अप्रिशिएट कर रहा है आपको, तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एब्सोल्युटली है। आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस हैप्पीनेस को, उन जी इमोशंस को वर्ड्स के अंदर ना। तो एक बहुत बहुत अच्छी चीज है कि आप अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हो और हैप्पीनेस स्प्रेड होती है इससे। आई थिंक पॉजिटिविटी बहुत स्प्रेड होती है। बिल्कुल। आई थिंक एक तरह से आपका फैमिली बॉन्डिंग भी हो जाता है इससे, brings the एग्जैक्टली family ये together. प्लान्स, लाइक जब हम कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है तो बच्चा, एक बॉन्डिंग है बीच में, बच्चा हमें कनेक्ट करता है। सेम यहाँ Right. प्लांट्स का भी यही सिस्टम है कि सही अभी कुछ भी ऐसी चीज हो जाए, प्लांट को सूखते हुए नहीं देख सकता कोई भी, जी कितना भी जी कुछ है, लेकिन प्लांट्स को पानी देना ही देना है। आज आपकी ड्यूटी है तो आपने देना है, मुझे मेरी ड्यूटी है बिल्कुल तो मुझे ही देना है, उसके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज। तो वो बिल्कुल बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है बात। और गिफ्ट करना Absolutely. है, लाइक वैलेंटाइंस डे पे मैं ये मुझे पिक करने गए, मेरी स्कूटी खराब हो गई, तो मैं बोला आज वैलेंटाइंस डे गिफ्ट करो मुझे। मैंने नहीं, मैं आज कुछ नहीं गिफ्ट करना, एक छोटा सा प्लांट ही ले लेते हैं हम। और हम उस दिन रोज लेके आए पिंक, और वो जी आज तक भी है और उस पे इतने रोजेस आते हैं, हमेशा वो वैलेंटाइन डे वाली फीलिंग ही फ्रेश हो जाती है जब भी उसके ऊपर एक फ्लावर आता है। very nice, very nice. That was very nice. Prabjot ji, would you like to share your thoughts with us? You're माइक muted. माइक All right. Actually, I'm very much emotional kind of a female because मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इशू नहीं है, by God's grace.
मेरे खुद के अंदर देन इट बी चाहे स्पिरिचुअलिटी को लेकर कहें या Bless आई you. एम वेरी मच क्लोज, या फिर कह लीजिए कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ में हम इतना बुरा वक्त देखते हैं, दूसरों की लाइफ में हम सोचते हैं कि अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो तो हाउ वुड आई गो थ्रू Yes. इट, या जी. बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम। Right. तो इसी दौरान जो सक्लेंस है, दे हैव टॉट मी कि सक्लेंस को बहुत ज्यादा कुछ डिमांडिंग नहीं है, उन्हें मिट्टी बहुत कम चाहिए या उन्हें न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, खाद नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, स्टिल दे ग्रो। और जी. इतना वी कैन सी दैट सक्लेंट्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव दैन अदर प्लांट्स। तो मुझे लगता है कि हम कम डिमांड बीइंग, मतलब रिजिलियंट, I should be resilient. I should not be demanding. I should be empathetic. Still, I can grow. Still, I can be rich within me. Still, I Right. can be stronger than yesterday. तो मुझे लगता है ये चीजें had brought, पहले होता था I was very much hypertension kind of a women, cause ऑफिस में इतना कुछ देखते हैं। एक जैसे रिसेंटली हमारे नारी निकेतन में एक लेडी आई है, स्कीजोफ्रेनिक है और वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है, या कोई रेप विक्टिम आ जाते हैं, मोलेस्टेड आ जाते हैं, अनवेड मदर्स आती हैं, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आते हैं। तो प्लांट्स आर माय सेवियर, एज आई ऑलवेज से, दे एब्सॉर्ब माय इंडिविजुअल नेगेटिविटी एंड दे ग्रो एंड दे लेट मी ग्रो आल्सो। So this is the thing which I have learned, yeah, which the thing I have really want to thankful and owe to my plants, that अगर वो ना होते शायद मेरा मेंटल ब्रेकडाउन तो जरूर हो जाता, और मैं शायद एक आधे घर वालों का भी कर देती, क्योंकि आई एम वेरी इमोशनल एंड आई स्टार्ट क्राइंग वेरी इजीली। बट नाउ इफ आई से आई जस्ट गो, आई लुक एट देम, अगर कोई डाइंग है तो उसको क्या चाहिए, आई टॉक टू देम, उनकी डिमांड्स पूरी करनी, वी कडल देम, वी टच देम। कहते हैं कि अगर कोई, अब सबसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई एक, I don't have much floral collection जो मेरे पास floral foliage वाले हैं, because they require more of sun, they require more of water. But मुझे अपने plants indoors ज्यादा पसंद है, because the time I enter my room या my drawing room या my home, तो I should face plants, तो उनको बहुत ज्यादा light नहीं मिलती है, so I incline more towards the green foliage kind of plants. तो इसलिए जो है दे हैव taught me कि we have to grow with each other, we bond with each other, and we have to stick to our roots. We should not be so demanding, still be rich, still be expensive, still be intellectually or spiritually high. Awesome. So these things actually I have perceived as with my garden. Absolutely. So actually it had helped me. और जो कुछ लोग होते हैं ना, टॉक्सिक पीपल कह लीजिए, टॉक्सिक सिचुएशंस कह लीजिए, टॉक्सिक वो, they have helped me to walk away from them. Super. I think somewhere you resonated my ideas, and I think very nice. I mean, to say that, it's a beautiful journey, especially when it comes to your kind of work profile, wherein you have to be empathetic to people who have had toxic relationships or gone through a toxic situation, and unko rehabilitate karne ke liye, you need to also have your own mental balance in place, your emotional balance in place. And the fact that you're telling that, कि आपको plants ने क्या क्या सिखाया है, I mean, the most important thing is how to be resilient in such situations, how to absorb everything, absorb all the negativity and filter it out and then throw it out. And, those were such brilliant ideas and thoughts जो आपने हमारे साथ share की. So I think your journey must be really interesting. Thank you. Through it all, how you relate with plants, and I think that analogy was something that you must appreciate. I would like to tell one incident. कोई टाइम होता था जब ऑफिस आने के बाद मुझे वो लड़कियां दिखती थी, बिकॉज हम उनसे being empathetic, we have to listen them. हमें उन्हें सुनना पड़ता है, ना चाहकर भी उन्हें सुनना पड़ता है. और फिर कोई ऐसा टाइम था that I used to see them in my dreams. तो आपको पता है कि वो as individual वो हमारे physical और mental state पे बहुत effect करते हैं. So when I started talking to my plants, you won't believe, out of the God's grace, I am blessed with
Kelly J, the Almighty. Now the time is that if I close my eyes, I can see that which plant is into dormancy, which plant is into the blooming state. So I can correlate and I can resonate with them. So this is the time. I really hardly get such kind of dreams. But yes, I'm not saying that I do get mental unstable. I do get, but they save me actually. Plants are the saviors. Super, yeah, super. What can I say? I don't know. I'm bowled over by both of you and your sharings. Right. So thank you for sharing such wonderful thoughts and your journey with us. So anyone in the audience, if you have questions, you can put it in the chat box. If we have time, we'll definitely take it up because we're running short of time now. Also, I can tell you that, they are gifting, जैसे आप दोनों ने कहा कि, you can gift for any occasion. So talking about gifting, I think the best person to talk about 7 wonderful reasons of why to gift a plant. So I would like to invite the expert and the right person to talk about it. Ekta, over to you. Thanks, Seema. Most welcome. So I was listening the session, and first of all, thanks to Dr. Kavita, Prabjot ji, and it's really amazing. We are learning a lot from both of you. Right. Thank you. Yeah. So I would like to share that जैसे कविता जी ने बताया कि हमें बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है. हम लोगों ने जैसे वेजिटेबल्स की आप बात कर रही हैं, एंड मैं खुद याद कर रही हूँ आज से 5 साल पहले मैंने भी अपना गार्डन बड़ी मेहनत से डेवलप किया था. बट एनी ऑल सिचुएशंस, ड्यू टू सम सिचुएशंस आई हैव टू वाइंड अप एवरीथिंग. सो वहां पर भी ऐसे ही रहता था. तो बड़ी से बड़ी सिंटेक्स की टंकियां, उसके अंदर यही धनिया, एक पेड़ लगाए थे फ्रूट्स वाले पौधे, और साथ में उनके जो बाकी जगह बचती थी, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पौध से तो एक पौधे के साथ और बहुत कुछ लगाया जा सकता था. तो यही रहता था. कोई भी सब्जी काटी, उसमें से जो भी सीड्स निकले हैं वो पॉट्स में जाएंगे. So बहुत the girl was working with me. वो मेरे पास हाफ डे के लिए रहती थी. उसको पता था कि जिस भी सब्जी में से कोई भी सीड निकला है तो वो सीड जो है वो गमलों के अंदर डालना है. तो इस तरह से हमने बहुत सारे बैंगन, शिमला मिर्च, ठीक है, करेला, तो प्याज काटा, तो प्याज जो है वो कटा हुआ प्याज उसमें पॉट में ही जाएगा. ठीक है, उसको काटने का तरीका रहता था. उसकी रूट्स को कट करते थे और उसको हम लोग पॉट में डालते थे. इसी तरह से लहसुन, ठीक है, आलू, जो बहुत सारे प्याज, एक मौसम आता है जब प्याज जो है वो हरा उसके अंदर निकलना शुरू हो जाता है. तो ऐसे वाले प्याज, आलू का भी जैसे आपने बताया, तो वो आलू, ठीक है. टमाटर कोई खराब हुआ तो वो टमाटर भी कहाँ पे जाएगा? वो डस्टबिन में नहीं जाएगा, वो पॉट में जाएगा. तो वो उससे क्या होता था, टमाटर, प्याज, आलू, इस तरह से. और घिया, जैसे आप बता रहे हैं, घीरा, इतनी बड़ी बड़ी घिया वो निकलती थी, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग. तो उसको एक जो फीलिंग आती थी कि सुबह गए हो और आपने वहां से, आपके पास ककड़ी, घिया, इस तरह से वेजिटेबल्स निकली हैं, आप उसको लेके आ रहे हो और शो करो कि इट्स लाइक दैट, जैसे कि हमने एक जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया. एक फूल खिलता था, एक पत्ता खिलता था, जैसे आप बता रहे हैं कि, तो मुझे भी ऐसे पता रहता है कि कौन सा पौधा कहाँ पर है, उसके कितने पत्ते निकले हैं, किसमें फूल आने वाला है, किसमें बात आई है. सो इट्स रियली अ वेरी वेरी अमेजिंग. जैसे कि हम लोग, एक माँ जैसे अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखती है, उसी तरह से एक पौधे को हम बढ़ते हुए देखते हैं. तो इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है. हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं. लोग पूछते हैं कि कौन सा पौधा जो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, तो और कौन से पौधे हैं जो ऑक्सीजन दे. तो मेरी थॉट ये रहेगी कि चाहे कितना भी रहे, हर पौधा इंपॉर्टेंट है. चाहे वो कैक्टस है, चाहे वो बॉन्साई है, ठीक है. देखिए, हम लोग हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है. बॉन्साई इज ऑल्सो एन आर्ट. और मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जिन्होंने हमारे से स्पेशली कैक्टस लिए हैं. और वो कैक्टस क्यों लिए हैं? क्योंकि बिकॉज दे वांटेड टू रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम देयर होम. एंड इट्स, अगर आप स्टडी करेंगे, थोड़ा गूगल करेंगे, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि कैक्टस जो है वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करता है. हमारी थॉट क्या रहती है कि जो कैक्टस है वो डेजर्ट में ग्रो करता है. तो अगर हम कैक्टस को अपने घर में लगाएंगे तो दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग द डेजर्ट, बट एक्चुअली इट्स नॉट. कैक्टस हमें सिखा रहा है कि डेजर्ट में, जहां पर गर्म हवा है, दिन में गर्म हवा है, रात को ठंडी हवा है, ठीक है, पानी नहीं है, बिल्कुल सिचुएशंस हैं, उसमें भी लाइफ है.
सो ये हमारी थॉट है, हम कैसे सोचना चाहते हैं. बिल्कुल. अब वन लाइन आई मेंशन दैट एवरीथिंग इज इन माइंड. अगर हम अपने माइंड में किसी चीज को नेगेटिव ले लेते हैं, कैक्टस इज नॉट नेगेटिव. कैक्टस इज टीचिंग अस टू सर्वाइव इन एवरी सिचुएशन, इन द एक्सट्रीम सिचुएशंस. आप ये देखिए, क्या हम ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं कि दिन में गर्मी और रात को ठंड है? नहीं. लेकिन आप देखिए कैक्टस सर्वाइव कर रहा है. डेजर्ट्स में क्या रहता है? ऐसे ही होता है, दिन में खूब हाई टेम्परेचर एंड नाइट में क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है. सिमिलरली नो वाटर एंड इतनी एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी अगर लाइफ है, दैट मीन्स कि वो लाइफ हमें सिखा रही है. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मैं भी कहूंगी कि कोई भी किसी भी तरह का पौधा घर में लगाने के लिए आप बिल्कुल भी हेसिटेट मत कीजिए. हर प्लांट हमें कुछ सिखाता है. जरूरत है कि तो हमें सीखने की, जानने की. दिल में इच्छा होनी चाहिए, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा. और जो प्लांट गिफ्टिंग की हम बात करेंगे, जो प्लांट गिफ्टिंग है वो क्यों? बिकॉज परिजय इज वर्किंग ऑन द मिशन दैट एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट. क्योंकि प्लांट्स के बिना हम अधूरे हैं. अगर हम साइंस में जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, तो प्लांट्स ही एक ऐसी चीज है जो हवा, पानी और जो जितने भी हमारे पास बोलेंगे कि जो हमारे पास जितनी भी हवा, पानी, रोशनी है, इस एनर्जी को फूड फॉर्म में कन्वर्ट करता है. प्लांट्स के अलावा और कोई नहीं कर सकता है. प्लांट्स ही हमें हवा दे रहे हैं, प्लांट्स ही हमें खाना दे रहे हैं, प्लांट्स ही हमें शेल्टर दे रहे हैं. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको घर का फर्नीचर चाहिए तो वो कैसे आएगा? वो लकड़ी से आएगा. वो लकड़ी पेड़ों से आएगी. सांस लेनी है, हवा चाहिए, वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? पौधों से मिलेगी. खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं. सपोज कोई कहता है कि नहीं जी, आई एम नॉन वेजिटेरियन. अगर वो नॉन वेजिटेरियन भी है तो वो जो जिन एनिमल्स पे सर्वाइव करते हैं, वो उन एनिमल्स को भी प्लांट्स ही चाहिए. तो हमारा सर्वाइवल प्लांट्स के बिना इम्पॉसिबल है. सो दैट्स व्हाई एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट. सो आप बिल्कुल मत सोचिए कि कौन सा प्लांट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, रिलीजियस है. गो टू अ साइंटिफिक व्यू. आप ये देखिए कि क्या हम प्लांट के बिना सर्वाइव कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो प्लीज कैरी ऑन. और अगर नहीं कर सकते, अगर आपका जवाब है कि नहीं, हम प्लांट्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हमें प्लांट्स चाहिए, तो प्लीज कैसे भी, कहीं भी, कभी भी पौधा लगाइए. ठीक है, उसके लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए. आप उस इच्छा शक्ति से प्लांट्स लगा सकते हैं. प्लांट्स को लगाइए, गिफ्ट कीजिए. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस लेगेसी को बढ़ाइए. आने वाली जनरेशंस को एक तोहफा दीजिए. बैंक बैलेंस हम बहुत छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वो बैंक बैलेंस जो है सांस लेने के काम नहीं आएगा. तो यही हमारा मोटिव है, यही हमारा मिशन है. इसी मिशन के साथ एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे हम 6 बजे मिलते हैं आप सबसे. सो हमारे एपिसोड्स के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ एज अ स्पीकर आइए, एज अ ऑडियंस आइए. And this platform is welcome for all the plant lovers as well as the people who are living the sustainable life. जो believe करते हैं कि हमें sustainability is demanding less and giving more. इसी पर्पस के लिए हमने त्रिवेणी मिशन शुरू किया है. त्रिवेणी मिशन is planting 1 lakh त्रिवेणी all over India. So इसमें ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग हमें घर में नहीं लगाना है या जगह नहीं है. तो प्लीज प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको जहां पर भी, चाहे आप पॉट्स के अंदर लगाइए, चाहे आप पॉट्स के अंदर छोटे छोटे बॉन्साई फॉर्म में लगाइए, किसी भी फॉर्म में लगाइए, लेकिन ये पौधे लगाइए. और जो कोई भी, और हमें भेजिए, आप जो भी प्लांटेशन कर रहे हैं उसकी आप हमें डिटेल्स भेजिए, अपनी फोटोज भेजिए. हम उसको अपने सोशल मीडिया पर और हमारी नई वेबसाइट है सृष्टि.org, उस पर हम लोग शेयर करेंगे. तो इट्स अ मोटिवेशन, इट्स अब हमें मिलकर इस काम को करना होगा. ठीक है, ये पौधे लगाने बंद कर दिए गए हैं क्योंकि स्पेस शॉर्टेज की वजह से. सो हमें लगता है कि ये पौधे जो हैं लगाने चाहिए, क्योंकि हर पौधा अपने आप में एक इकोसिस्टम है. जिस तरह से हम लोग एक जगह सोचते हैं कि हमें ऐसी जगह चाहिए, यहाँ पर हमें रहना है, ये लोकेशन अच्छी है, उसी तरह से ये जो पशु पक्षी हैं वो भी हर पौधे को अपना घर चुनते हैं. सो इस तरह के हर तरह के पौधे लगाने चाहिए. हमें सिर्फ एस्थेटिक या सिर्फ फ्रूट, सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं, हर तरह के पौधों पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ताकि हम अपने जो हम सिर्फ इंसान ही नहीं और बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ पर हैं, उन सबके लिए वो इकोसिस्टम क्रिएट करना है. सो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए.
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए and let's build this earth worth living. Wonderful. Thank you. Thank you so much, Ekta. Thank you for the brilliant share of all your points of कैसे हमें जिंदगी जीनी चाहिए. And I think all three of you have given us a brilliant insight on the philosophy of life that plants teach us. And I am sure our audience will go back enriched with Prabjot ji, जिस तरीके से she was talking about being empathetic, being resilient, and leading life, the way unconditionally. And with Dr. Kavita, कि आपकी जो creativity है, the brilliant tips and tricks that you said, like how you can use reusability of things which are non-biodegradable. That was brilliant. And Prabjot ji's idea of, how to decorate your interiors with plants, with simple ideas, and how to inculcate them without, on a low budget that could suit everybody and anybody. And lastly, but not the least, Ekta, that was a superb analysis. Thanks a lot. Queries, then please, we have our details in the chat box. You can get to us by phone or through the social media. And we have our details displayed on our screen as well. So please get in touch with us. We'd like to invite all of you for our Triveni mission, be a part of it so that, we can create a much more greener environment, especially for the next generation. Something for us to do, leave a green legacy for them. Also, I would like to invite any passionate plant lovers to come be a part of our webinars, which we conduct every first and third Saturday of the month on the passionate plant lovers, and also on sustainability and gift a plant, gift a life on every Thursdays. So please be a part of our show as a speaker, as audience, as Ekta mentioned. So together, let's make a greener, happier world. Thank you, speakers. Dr. Kavita, Prabjot ji, for staying with us and sharing all your beautiful insights. I'd also like to thank my audience to be with us, and I hope you have a good takeaway and wonderful learnings from both our speakers. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity. And Our pleasure, ma'am. Our pleasure. So many things from Prabjot ji and Seema ji. Thank you, Ekta ma'am. Thank you so much. Thank you. Thanks Madam, a lot. Thanks from my end too. I'm glad to be a part of this. Can I ask a question, madam, to the speakers? जी. देखिए, अगर कोई बंजर जमीन हो और उस पे ऑर्चर्ड्स लगाने हो, क्या आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है क्या इंटरमिटेंट बेसिस पे कुछ पौधे लगा के उस बंजर जमीन की नेचर को चेंज कर दिया जाए, अल्टीमेटली ऑर्चर्ड्स उस पे लग जाए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्चिड्स जो है वो मिट्टी में नहीं होते हैं, तो बंजर जमीन तो और भी सख्त होती है. ऑर्चिड्स जो है जो ट्रीज के ऊपर ट्रेल करते हैं और वो सरवाइव भी ट्रीज से ही होते हैं. जो उनका खाना है, जो उनका पानी है, वो सब ट्रीज से लेते हैं. तो इसलिए इन दैट केस आई रियली डू नॉट बिलीव कि बंजर जमीन पे अगर सिर्फ और सिर्फ ऑर्चिड्स लगाना चाहते हैं तो इट इज पॉसिबल. आप instead of those orchids you can opt for other plants, I think. Fine. Thank you, madam. Thank you. Probably you could change the kind of plants that you choose. And if you still have any doubts, you can reach out to us. We have our details in the chat box. Okay. Thanks a lot, madam. Please do reach out to us. Thank you you so much. Yes, thank you to our audience. Thank you, Kavita ji. Thank you, Prabjot ji. Thank you so much. And a very good evening and, a happy weekend to all our audience. Thank you so much. Right.